In this class, we are going to study about the chemoautotrophic bacteria. So this is another type of bacteria that can synthesize its own organic chemicals. That is, it is an autotrophic type of bacteria, and we already have studied about one autotrophic bacteria, and that was photoautotrophic. So in the case of photoautotrophic bacteria, the source of energy was radiant energy or solar radiation. But in this type of autotrophic bacteria, the source of energy would be oxidation reactions. So this bacteria would oxidize certain chemicals, which we will see later what are those chemicals, and by oxidation of those chemicals, this bacteria releases certain energy, and thereafter it uses that energy to store it in the form of ATP, and uses that ATP to synthesize other organic molecules whose synthesis requires a lot of energy. So this bacteria is also autotrophic, and photoautotrophic was also autotrophic. So the difference is between the light source or the energy source, that is photoautotrophic requires light as energy source. This bacteria uses oxidation and reduction, that is redox reactions, as energy sources. So this bacteria can oxidize certain inorganic materials and use that energy. So first let's look at the definition of this type of bacteria. So these bacteria obtain energy from exergonic reactions, exergonic oxidation reactions. In chemistry, you will study about certain reactions which are exothermic and endothermic, and also you are going to study about exergonic and endergonic reaction. So this exergonic reaction is one which releases energy, or it releases heat energy or any other form of energy. So this is an exergonic reaction, heat will be or energy will be released in this case. Now the energy thus obtained is utilized to synthesize ATP, and in 10th class you must have studied about ADP plus IP ATP. So we will study about what that means and what it actually does. So the energy stored as ATP is utilized to synthesize organic substances. So यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है 3 स्टेप्स में काम करता है. सो यही 3 स्टेप्स को हमने यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पर लिखा है. सो सबसे पहले ये बैक्टीरिया क्या करेगा, किसी भी मटेरियल का, किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन करेगा. सपोज दिस X इज व्हाटएवर, ये X आयरन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, तो उनके डिफरेंट कैटेगरीज हमें यहाँ पढ़ने हैं. सो X कुछ भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है. सो दिस X विल बी ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर X के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो वी नो दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजेशन. तो यहां पर X हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन, यानी कि इस बैक्टीरिया ने क्या किया है, ऑक्सीजन की मदद से X को ऑक्सीडाइज कर दिया, और इस ऑक्सीडेशन में हमें जो ऑब्टेन हुआ है वो है XO2, यानी कि X का ऑक्सीडाइज्ड वर्जन या ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड, और जिस चीज के लिए बैक्टीरिया ने किया है वो है एनर्जी. तो बैक्टीरिया ने इस केमिकल को ऑक्सीडाइज कर दिया और उसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन गया. नाउ जो दूसरा मेन पार्ट है, यानी कि एनर्जी, बैक्टीरिया ने इसी एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन किया है, और नॉर्मली ये जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में इजीली अवेलेबल होता है. सो दिस द सोर्स ऑफ दिस ऑक्सीजन इज द एटमॉस्फेरिक एयर. नाउ वी कम टू व्हाट डज दिस एनर्जी डू. तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं या जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो ATP सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो ATP को सेल का एनर्जी करेंसी कहा जाता है. यू माइट बी रिमेंबरिंग दिस. ATP इज एनर्जी करेंसी. तो बैक्टीरिया जो है वो इस एनर्जी को रॉ फॉर्म में या उसी फॉर्म में स्टोर नहीं करके रख सकता है, ये एनर्जी का लॉस हो जाएगा. दिस एनर्जी वुड अंडरगो लॉस, यानी कि यहाँ पर हीट एनर्जी के फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाएगा. सो बैक्टीरिया डज नॉट रिक्वायर ऑल ऑफ दिस एनर्जी एट वंस, क्योंकि बैक्टीरिया एक बार में तो अपना सारा एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो उसे एनर्जी को स्टोर करने की जरूरत होती है. और ह्यूमंस में या फिर यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में, तो हम तो पढ़ रहे हैं अभी प्रोकैरियोट्स, क्योंकि मोनेरा के अंदर
प्रोकैरियोट्स आते हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स में भी एटीपी को एनर्जी करेंसी के तौर पे यूज किया जाता है। तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, यानी कि सेल अपना जो स्टोर्ड एनर्जी होता है, जो कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से एनर्जी ऑब्टेन होता है, या यहां पर ऑक्सीडेशन के थ्रू जो एनर्जी ऑब्टेन हुआ है, इसे कन्वर्ट कर देगा एटीपी के फॉर्म में। सो कैसे कन्वर्ट होगा? सो एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाने के लिए एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज किया जाता है, दैट इज एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, प्लस आईपी, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस एनर्जी। तो ये एनर्जी कहां से आया है? तो ऊपर वाले स्टेप में जो ये एनर्जी ऑब्टेन हुआ है, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन दिस केस। तो इस एनर्जी को यूज करके बैक्टीरिया ने एडीपी और आईपी को यूज किया, और उसके साथ साथ इस एनर्जी को लगा के एटीपी बना लिया, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का सिंथेसिस यहां पर हो गया। अब इस स्टेप, इस एटीपी को स्टोर करता है बैक्टीरिया। तो जब भी बैक्टीरिया को किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, तो बैक्टीरिया यूज करेगा अपना एटीपी। तो उसका एक कॉमन सा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए नॉर्मली अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में एनर्जी सनलाइट से आता है, CO2 प्लस H2O, C6H12O6 जो ग्लूकोज बनता है प्लांट्स में, वहां पर वो एनर्जी सनलाइट से आता है। लेकिन यहां पर एनर्जी आया है एटीपी से, और एटीपी का एनर्जी कहां से आया है? ऑक्सीडेशन से। तो अल्टीमेटली यहां पर जो एटीपी या ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए एनर्जी है, वो किसी इनऑर्गेनिक केमिकल से आया है। सो X का एनर्जी यहां पर रिलीज हुआ, इस एनर्जी से एटीपी बना, उस एटीपी से इसका सिंथेसिस हो रहा है। तो यहां पर जो एनर्जी सोर्स है अल्टीमेटली X है। X कुड बी एनी केमिकल, एनी इनऑर्गेनिक केमिकल। नाउ अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की बात करें, तो वहां पे भी यही होता है, 6CO2, लेकिन वहां पर होता है 12H2O। तो 12H2O में 24 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो यहां पे भी 24 हाइड्रोजन एटम्स हमने ले लिया, और इनके साथ इनका रिडक्शन हो जाएगा, तो बन जाएगा ग्लूकोज, दैट इज, दिस इज ग्लूकोज। C6H12 is glucose and 6H2O is being released। तो बैक्टीरिया ने अपना ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लिया, यानी कि उसने अपना ऑर्गेनिक केमिकल सिंथेसाइज कर लिया। सो दिस इज द जनरल मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। So this is how bacteria would undergo perform metabolic synthesis और metabolic any activity। So ये तीनों बेसिक स्टेप्स है जिसके थ्रू बैक्टीरिया अपना मेटाबॉलिज्म फॉलो करेगा। नाउ इसमें हम X के बेसिस पर 6 टाइप में इस बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो X है ये बहुत डिफरेंट टाइप का केमिकल हो सकता है। तो बाकी सारे स्टेप्स सेम होंगे, लेकिन X चेंज हो सकता है। ये हो सकता है कोई नाइट्रोजन कंपाउंड, ये हो सकता है कोई सल्फर कंपाउंड, ये हो सकता है कोई आयरन कंपाउंड, ये हाइड्रोजन कंपाउंड हो सकता है, या सिर्फ हाइड्रोजन भी हो सकता है। सो X वेरी करते रहेंगे सारे रिएक्शंस में, लेकिन X के बेसिस पे हम 6 क्लासिफिकेशन करेंगे इसका। तो 6 टाइप का बैक्टीरिया हमने देखा है, जो कि जिसमें कि ये सारे प्रोसेसेस होंगे, लेकिन बस X में वेरिएशन आएगा। तो जहां पर X की जगह पे नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, उसे हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में 2 तरह के हैं, एक है नाइट्रेट फॉर्मेशन वाले और दूसरे हैं नाइट्राइट फॉर्मेशन वाले। तो नाइट्राइट फॉर्मेशन वाले में नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है, और नाइट्रेट वाले में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सो वी कैन सी दीज 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वन इज नाइट्राइट। So examples is Nitrosomonas and Nitrosococcus। अब दूसरे में जो एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। तो ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं। हमें जो मेन पार्ट है हमारा रिएक्शन पार्ट, तो अगर हम यहां पर देखें तो इस केस में यानी कि नाइट्राइट बैक्टीरिया में नाइट्राइट का सिंथेसिस हुआ है। दिस NO2 माइनस इज कॉल्ड एज नाइट्राइट। आप लोग ये चीज केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, इसे हम कहते हैं नाइट्राइट। और ये जो केमिकल है HNO2, इट इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड। तो ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रस एसिड का सिंथेसिस करता है,
और इसमें जो NO2 पार्ट है, NO2 माइनस, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्राइट, इसीलिए इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं नाइट्राइट बैक्टीरिया। नाउ जो दूसरा है वो है नाइट्रेट बैक्टीरिया। तो नाइट्रेट बैक्टीरिया में क्या हो गया, नाइट्राइट जो यहां बना था उसी का फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर से उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम। तो यहां पर बना HNO3, तो यहां पर NO3 को हम कहते हैं नाइट्रेट आयन या NO3 माइनस आयन, इसे कहते हैं हम नाइट्रेट आयन। और ये जो HNO3 है इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। केमिस्ट्री में आपने 3 बहुत कॉमन एसिड्स का नाम सुना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दिस इज दैट नाइट्रिक एसिड। तो यहां पर सिंस नाइट्रेट आयन का सिंथेसिस हो रहा है तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं नाइट्रेट बैक्टीरिया, यानी कि इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं जिनमें नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे नाइट्रेट बैक्टीरिया, और उस तरह के बैक्टीरिया जिसमें नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम कहेंगे नाइट्राइट बैक्टीरिया। सो इनके एग्जांपल्स हमें याद रखते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकॉकस और फिर है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्ट्रिस। तो ये चारों एग्जांपल हमें दोनों टाइप के याद रखते हैं। अब यही रिएक्शन दोबारा से हम प्लांट्स में पढ़ेंगे जब न्यूट्रिशन की बात करेंगे। आपने बचपन में पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, और नाइट्रोजन साइकिल में एक प्रोसेस आता है जिसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के ये सारे स्टेप्स हैं। तो उन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो सॉइल और प्लांट्स के रूट में जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है वहां पर ये सारे रिएक्शंस फिर से आएंगे, यानी कि चैप्टर 11-12 में हम इन रिएक्शंस को फिर से पढ़ने वाले हैं। तो इसे हम कहां पढ़ेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के कैटेगरी के अंदर वहां पे दोबारा से पढ़ेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया हैं इनके एग्जाम्पल हमें फिर से पढ़ने हैं उसी चैप्टर में। नाउ वी कम टू सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया में X की जगह पे क्या हो गया, H2S। तो यहां पर X था, यहां पर H2S है। उसी तरह यहां पर X की जगह पे क्या हो गया, अमोनिया, यहां पर X की जगह पे क्या हो गया, नाइट्रस एसिड। तो बस X का पोजीशन चेंज हुआ है, बाकी ऑक्सीडेशन तो हर जगह पे हो रहा है। जो मेन रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का वो तो हो ही रहा है हर जगह पर। नाउ वी कम टू द सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया में X की जगह पे हो गया है H2S, फिर इसका भी वही प्रोसेस होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हुआ तो वाटर बना और फ्री सल्फर। अब इसके साथ साथ क्या रिलीज हुआ, एनर्जी। अब इस एनर्जी से क्या होगा, ATP बनेगा, और फिर उस एनर्जी से ATP से क्या होगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। तो बस पहला वाला स्टेप चेंज होगा, हर जगह का जो है ना पहला स्टेप चेंज होगा, बाकी दोनों स्टेप सेम होंगे। सो वी कैन नेम इट एज स्टेप 1। तो ये तीनों स्टेप्स में रिएक्शंस होते हैं। तो बेसिकली हर जगह जो हमारा स्टेप 1 है वही चेंज करेगा। तो ये जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बस स्टेप 1 में चेंजेस आएंगे। स्टेप 1 में क्या यूज होगा, उसके बाद एनर्जी, और एनर्जी के बाद वाले स्टेप 2 और स्टेप 3 इन सभी बैक्टीरिया में कॉमन होंगे, इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं पाया जाता है जनरली। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि स्टेप 1 में क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S का यूज किया गया, तो यहां भी एनर्जी मिला। इसके बाद सेकंड स्टेप से रिएक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। इसी का एक और एग्जांपल है थायोबैसिलस। तो थायोबैसिलस में सिर्फ रॉ सल्फर का यूज किया जाता है या फिर फ्री सल्फर का यूज किया जाता है। तो फ्री सल्फर में वाटर और ऑक्सीजन की मदद से क्या सिंथेसाइज होता है, H2SO4। एंड यू मस्ट बी नोइंग दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोग केमिस्ट्री में इन तीनों एसिड्स के बारे में बहुत कॉमनली पढ़ने वाले हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस नाइट्रिक एसिड। ये तीनों बहुत कॉमन एसिड्स है जो कई बार आपको केमिस्ट्री में एग्जांपल्स में आने वाले हैं। नाउ वी कम टू द आयरन बैक्टीरिया। तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन किया गया, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन किया गया। आपने केमिस्ट्री में पढ़ना है बहुत सारी चीजें जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है।
तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो वहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे कि नाइट्रोजन जो होता है या फिर कोई भी केमिकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है। जैसे कि यहाँ पर HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, लाइकवाइज अलग अलग जगहों पर यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो उसी तरीके से बहुत सारे जगहों पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखोगे केमिस्ट्री में। लेकिन यहां पर हमें बस इतना याद रखना है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन और यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन, दैट इज फेरस आयन का। सो केमिस्ट्री में आप लोग को पता है भली भांति कि आयरन का सिंबल होता है Fe, दैट इज फेरम। तो यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आयरन का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो इस केमिकल को कहते हैं फेरस कार्बोनेट और इस केमिकल को कहते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरस में यहां पर जो हमारा आयरन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। आप लोग ये निकालना सीखोगे केमिस्ट्री में कि ये कैसे निकाला जाता है, नॉट हियर नाउ। यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का वो है +3। तो +2 से +3 हुआ यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया। तो ये भी हो गया एक तरह से ऑक्सीडेशन। अब यहां पर CO2 निकला और फिर एनर्जी निकला तो फिर से यहां पर बाकी स्टेप कॉमन हो जाएंगे। तो एनर्जी को यूज किया जाएगा, ADP IP यहां पर आ जाएगा एनर्जी इसका, और फिर सेकंड और थर्ड स्टेप कॉमन हो जाएंगे। तो बस हर जगह पर X चेंज हुआ है। X यहां पर फेरस कार्बोनेट है, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, तो ये सारे एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं आयरन बैक्टीरिया। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है फेरोबैसिलस। ठीक है, नाउ वी कम टू द हाइड्रोजन बैक्टीरिया। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर X की जगह पे होगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने पे क्या बनता है, वाटर बनता है। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। आपने मे बी केमिस्ट्री का सबसे पहला इक्वेशन जो पढ़ा होगा यही होगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाता है। इसके अलावा और भी केमिकल्स बन सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे हम कहते हैं H2O2। तो यहाँ पे हम नॉर्मली इक्वेशन में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी निकलेगा। तो ये एनर्जी कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और फिर से ये दोनों रिएक्शंस कॉमन हो जाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया जहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बैक्टीरिया। लाइकवाइज उसके बाद हम बात कर सकते हैं कार्बोक्सिडो बैक्टीरिया। तो यहां नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कार्बोक्सी यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स यूज होंगे यहां पर। तो इसके कॉमन एग्जांपल है ज़्यूडोमोनास, और ज़्यूडोमोनास और भी जगहों पर एग्जाम्पल में आने वाला है। ज़्यूडोमोनास के कुछ अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनका एग्जाम्पल कहीं और आएगा और यहाँ पर ज़्यूडोमोनास का एग्जाम्पल आ रहा है। तो ज़्यूडोमोनास कई जगहों पर अलग अलग कैटेगरीज में आएगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यूडोमोनास सिर्फ और सिर्फ इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा डॉक्सिया है। सो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर CO2 है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर, या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है, या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी यहाँ पे बढ़े हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो X की जगह पर यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर भी एनर्जी मिला। एनर्जी फिर से कहाँ चला जाएगा, इसी इक्वेशन में, फिर 2 और 3 कॉमन हो जाएंगे। तो जहां पर X की जगह पे CO है उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिडो बैक्टीरिया। डॉक्सिया हो गया एग्जाम्पल, या ज़्यूडोमोनास हो गया एग्जाम्पल। अब जो उसके बाद का कैटेगरी है मीथेन। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं X की जगह पर यहाँ पर CH4 है। तो CH4 आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसे कहते हैं मीथेन। तो मीथेन का ऑक्सीडेशन किया जाएगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। उसके बाद एनर्जी रिलीज होगा। तो जब एनर्जी रिलीज होगा तो ये फिर से कहाँ चला जाएगा, स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 रिपीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया के नाम है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आपने और भी जगहों पर पढ़ना है मिथेनोकॉकस। तो मिथेनोकॉकस आता है हमारे आर्की बैक्टीरिया में, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया। तो यहाँ मिथेनोकॉकस और मिथाइलोकॉकस में कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर मिथाइलोकॉकस है और मिथेनोकॉकस होता है आर्की बैक्टीरिया में, जो हमने पहले ही पढ़ा था, जिसमें हमने मिथेनोजेंस के बारे में पढ़ा था। उसी तरह मिथाइलोमोनास, तो इसका भी नाम वहां से काफी ज्यादा मैच करता है। लाइकवाइज मिथाइलोबैक्टर, तो वहां पर मिथेनोजेंस में हमने पढ़ा था मिथेनोबैक्टीरियम, लेकिन यहाँ पे मिथाइलोबैक्टर है।
तो बहुत सारे बच्चे इसके नेमिंग में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना यहाँ मिथाइलो यूज किया जा रहा है और आर्की बैक्टीरिया में मिथेनो कहते हैं। तो मिथाइलो यहाँ पर और आर्की बैक्टीरिया में मिथेनो, तो उसकी जगह पे वहां मिथेनोबैक्टर हो सकता है या फिर मिथाइनोकॉकस हो सकता है या मिथेनोमोनास हो सकता है, लेकिन यहां पर मिथाइलो वर्ड है, तो ये मिथाइलो इंपॉर्टेंट है। तो मिथाइलो है अगर है तो इस कैटेगरी का एग्जांपल है, और मिथेनो है तो मिथेनो है तो आर्की बैक्टीरिया का एग्जांपल है। तो इन सभी 6 की 6 कैटेगरीज में हमने बस एक ही चीज चेंज किया है और वो है एक्स। यहां पर एक्स अमोनिया या नाइट्रस एसिड है, इस केस में एक्स जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर है, फिर इस केस में एक्स फेरस कार्बोनेट है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और मीथेन है। बाकी सारे रिएक्शंस तो एज इट इज हैं, सेम एज बिफोर है, यानी कि स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 इन सभी में होगा। हमने जो एडिशनल इक्वेशंस पढ़े हैं यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ स्टेप 1 के लिए है, यानी कि स्टेप 1 को हम लोग चेंज करते जाएंगे, उनका ऑक्सीडेशन करते जाएंगे, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 सभी में कॉमन होगा। तो इस तरीके से ये जो कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीडेशन की मदद से एनर्जी ऑब्टेन करके अपना मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। सो नाउ वी हैव स्टडीड द फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया एज वेल एज कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो हमारे सिलेबस में यही 2 टाइप के ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं। इनके बाद हमें जो दूसरे टाइप के बैक्टीरिया पढ़ने हैं जिन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, और हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में हमें पढ़ना है सैप्रोट्रोफिक के बारे में, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। ये 3 तरह के बैक्टीरिया हमें पढ़ने हैं, दैट इज अंडर द हेडिंग ऑफ कीमो और द नॉर्मली हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। सो यहां पर कीमो हेट्रोट्रोफिक भी आएगा और यहां पर कीमो ऑटोट्रोफिक है। तो जब हम हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहां पर कीमो हेट्रोट्रोफिक आएगा और यहां पर हमने कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया पढ़ा है। सो डोंट कंफ्यूज, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वहां पर कीमो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आएंगे और यहां पर कीमो ऑटोट्रोफिक है। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे और वहां पर कीमो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, दैट इज ये ऑटोट्रोफिक है और वो हेट्रोट्रोफिक होगा। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया दैट इज फोटो ऑटोट्रोफिक एज वेल एज कीमो ऑटोट्रोफिक, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द symbiotic, parasitic as well as the other types of heterotrophic bacteria.